Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. Okay, I am audible. I am audible to everyone. Okay, so today we will start with ovarian factor infertility. In that, we had studied one factor, that is the follicular study. So, first to rule out and differentiate between ovulatory and anovulatory, in today's scenario, USG pelvis for ovulation study is very well accepted. So that we already discussed that we will do the ovulation study. Ideally, it should be started from day 2 of the cycle. So on the day 2, we will, one second please. On the day 2 of the cycle, we will see the basic antral follicle count in the right ovary, left ovary, see the endometrial thickness, and then we will follow the discussion. So ideally on day 2, day 3, antral follicles are should be less than 8 millimeter, endometrial thickness should be less than 5 millimeter. On day 7 or day 8, on day 7 or day 8, follicle size should be approximate around 12 to 13 mm. Endometrial thickness should around 6 to 7 mm. As advances on day 11 or day 12, follicle will reach up to 18 to 20 mm, and follicles and endometrial thickness will reach up to 7 to 12 mm. So it is the ideal how follicular study is going on. Let me show you one report that Dr. Ruksar, one of the participant of this course, had shared this slide. One second please. બેટા બધું પહેલા કરે, અત્યારે ક્યાં તું કરે છે દીકરા? Can you all see the reports? See, this is a ovulatory. Hello, can you hear me now? Hello, can you hear me? I'm audible. Hello, I'm audible. Okay. So see, this is a ovulation study. So this is shared by one of our participant, Dr. Ruksar. So this is the ovulation study. Today is done. Date is 6th July. Ovulation day means day of study is 7th day. Right ovary follicle is 6 centimeter. Sorry, point 6 centimeter means it is around 5 mm. Left ovary it is 9 mm. Endometrium is 6 mm. And POD is clear. So it is ideally less than expected response, because 7th day of the cycle, follicle, both the follicles should be reach up to 12 to 13 mm. So this is a very less response. So this, if you see this kind of the report, day 2 hormonal scan is must needed to rule out the any pathology. Because if there is only imbalance in at the follicular level, at the hormonal level, then and then you will see this kind of report.
Everyone understood how what I am going to tell you? Okay. Yeah, yeah. Because uterus normal size that I told you is ideally 6 by 5 by 4. We are considered 1 centimeter आगे पीछे चलता है. तो suppose if you are doing see this, it's a 6 by 3 by approximate 4. So 6 by 4 by 3. So it's this uterus is also size is smaller than normal, because everything radiologist will not tell you. So this is not as very small, but definitely uterus size is small, because here they no here they written nothing. So the size is small, but definitely follicles is not good this for size. So the if you kind this kind of report, in such a case day 2H is must. FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन एंड ऐसे आपको लगता है तो AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन. सो आपको पता चलेगा वाई हार्मोन, वाई ड्यू टू दिस प्रॉब्लम इन्हीं में से किसी में होगा. देन एंड देन ओनली यू विल सीक दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट. Let's see another report. See, here 10th day of the cycle, right ovary shows 14 mm, left ovary shows 11 mm, and endometrium is 6 mm. So it's a fine. 10th day पे for around 15 mm follicle, dominant follicle with endometrium 6 mm is fine. And 13th डे पे इट इज इन राइट ओवर इट इज अराउंड 18 mm. लेफ्ट में उन्होंने डैश किया है, दैट मीन्स के वो 11 mm से आगे नहीं बढ़ा है. तो ओनली डोमिनेंट फॉलिकल इज 1, 17 mm इन राइट ओवरी, एंडोमेट्रियम इज 8.6 mm एंड पीओडी इज क्लियर. स्टिल दिस स्टडी इज लेस, बिकॉज ओव्यूलेशन यहाँ पे इन्होंने कंफर्म नहीं किया है. तो इसके बाद भी आइडियली ओव्यूलेशन कंफर्म करना चाहिए. तो उसमें वो लोग लिखेंगे फॉलिकल डिसअपियर एंड फ्लूइड सीन इन द पाउच ऑफ डगलास. सो दैट सजेस्ट द ओव्यूलेशन. सी अनदर रिपोर्ट. 10th डे पे राइट ओवरी में 10 mm का फॉलिकल है और लेफ्ट का डोमिनेंट फॉलिकल 18 mm का है, बट एंडोमेट्रियम इज 6 mm. सो एंडोमेट्रियम को रिलेट नहीं कर रहा है इसमें. हेलो, ओके, नाउ एबल टू सी. ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि 10th डे है. राइट का तो इसको राइट ओवरी का जो 10 सेंटीमीटर लिखा है मीन्स 10 mm, तो वो तो हम गिनेंगे नहीं. सो लेफ्ट ओवरी का डोमिनेंट फॉलिकल 18 mm का एक है, तो 18 mm का है और सामने एंडोमेट्रियम 6 mm है. तो इट्स एंडोमेट्रियम यहाँ पे कम है प्रेगनेंसी रखने के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिल वी विल वेट फॉर मोर 2 days, बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट वेरी स्मॉल एंडोमेट्रियम. So we will another wait for 2 days and again we will do the scan repeat. So I think there is no much problem here. This follicle will grow, increase and will give the result. So it is considered as a normal. Okay. So everyone understood how we study, how we see the follicular study report. Okay. Now we will move to our lecture.
hello. Now, so the ovarian factor, first we rule out whether it is ovulatory and anovulatory with USG pelvis follicular study. The second method is LH search kit. What is LH search kit? Like a urine pregnancy test. Please mute yourself, everyone. So second is LH search kit. What is that? So in LH search, what we will do, the LH search kits available in the market like a urine pregnancy kit. So urine pregnancy kit, what they will detect? They will detect urinary HCG level. And this LH search kit, what will they detect? They will detect secretion of LH in the urine. So as we all discussed, the LH surge happens, and after LH surge 24 to 36 hours later ovulation will happen. So in the market ovulation kits are available, that is called LH surge kit. So what they do, from the 12th day onwards डेली आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा, जैसे यूपीटी करते हैं ऐसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ऐसे सिर्फ यूरिन ड्रॉप रख के देखना है. जिस दिन पे 2 लाइन आती है उसके 24 से 36 घंटे में रिलेशन रखना है. उसके बाद में तो दे विल कीप द रिलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, सो चांसेस ऑफ कंसेप्शन विल बी इंक्रीज्ड. सो दिस इज द सेकंड मेथड हाउ वी डिटेक्ट द ovulation. So first is USG pelvis, second is LH search kit, third is mid-luteal progesterone. In the western countries they will not do this ultrasound in each and every patient, so mostly they prefer on the mid-luteal progesterone. What is that? We had discussed in the physiology of menstruation that once the ovulation happens there is a increase in the progesterone by the ovaries. So अगर ovulation patient का होता है तो obviously there is a rise in the progesterone level. So progesterone will rise. So when you mid luteal यानी ovulation के बाद का जो फेज है उसको mid luteal फेज बोलते हैं. तो डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 21st डे का आप सीरम प्रोजेस्ट्रॉन करके देखते हो, और इफ डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन वैल्यू मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml, अगर वो 10 से ज्यादा है देन दैट पेशेंट इज ओव्यूलेटरी. अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो ही प्रोजेस्ट्रॉन इतना राइज होगा. So day 21 progesterone 10 more than 10 nanogram per dl indicates the sign of ovulation. So in western countries, in European countries, in America, they mostly do the mid-luteal progesterone. अगर पेशेंट का प्रोजेस्ट्रॉन राइज है means it is a ovulation. Second is you can go for day 2H, that I already told you. Basal, FSH, LH, TSH and prolactin are considered as a day 2H hormone. FSH, LH, TSH and prolactin. So they mostly in 90% of the cycles they will all in normal consideration amount if the patient is ovulatory. FSH and LH should be between 1.2 to 8. TSH should be less than 4. Prolactin should be less than 25. अभी तो इतना सबको आना चाहिए. तो basal, if all these day 2H hormone are within a normal range, that means that patient is ovulatory. अभी एक एक करेंगे कि FSH, LH वो हम बाद में मैं लेती हूँ. फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी. नाउअडेज देयर इज नो सच रोल. पहले के ज़माने में जब USG नहीं थी तो अवर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके देखते थे. कैसे करते थे? तो एंडोमेट्रियल थिकनेस मैंने बोला ओव्यूलेशन के पहले प्रोलिफरेटिव फेज में होती है और ओव्यूलेशन के बाद सिक्रेटरी फेज में जाती है. तो सिंपली दे डू बायोप्सी इन द लेट ल्यूटियल फेज, मीन्स
डे 25 पे वो लोग डीएनसी करेंगे। साइकिल जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसका बायोप्सी रिपोर्ट देखेंगे। अगर पैथोलॉजी में वो दिखाता है कि सिक्रेटरी फेज है तो इट इज ओव्यूलेटरी साइकिल, बट इट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज। सो नाउअडेज व्हाट मेनली वी आर यूजिंग इज USG pelvis follicular study. Second is LH search kit or the ovulation kits available in the markets freely, and third is mid luteal progesterone, and fourth is all day 2H hormone. So I think everybody cleared. Whenever you has doubt in ovulatory problem, when patient's menstrual cycle is irregular, always go for the day 2H first, that is the FSH, LH, TSH, prolactin should be done on day 2 or day 3 of the cycle on an empty stomach. I am again repeat, on empty stomach, day 2 and day 3 of the cycle. Because अगर आप कभी भी कराते हो तो they all will fluctuate, तो आपको सच्चा रिपोर्ट नहीं मिलेगा. So always do on day 2 or day 3 with empty stomach. And progesterone आपको देखना है तो day 21, that is called mid luteal progesterone support. So आपको सिर्फ पैथोलॉजी में भेजते हो तो सिर्फ इतना ही लिखना होता है, सीरम प्रोजेस्ट्रॉन. मैम हाँ बोलिए. मैम डे 6 भी तो कराते हैं. क्या 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 प्रोलैक्टिन. नहीं, मैं आइडियली प्रीफर करती हूँ कि ऑल प्रोलैक्टिन ऐसा है, देखिए कि प्रोलैक्टिन मोस्टली आप कभी भी करा सकते हो, उसमें इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा. TSH एंड प्रोलैक्टिन कैन बी डन एट एनी डे ऑफ द साइकिल, बट FSH एंड LH कंपल्सरी ऑन day 2 और day 3 ऑफ द साइकिल. प्रोलैक्टिन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप day 6 पे कराओ या day 7 पे कराओ, पर अगर आप एक प्रोफाइल देखते हो तो आइडियली इट शुड बी डन ऑन day 2 और day 3 ऑफ द साइकिल. what is the reason behind that? As the follicle grows, there will be changes occurs in FSH and LH level. So if you do these reports on day 6, day 7 FSH LH, तो there will be the alteration. So हम ऐसा नहीं करते हैं कि day 2 पे FSH LH कराया और day 6 पे फिर प्रोलैक्टिन के लिए भेजा. So always carry all 4 reports together on day 2 or day 3 is the ideal methodology. कोई कोई ये भी कहता है कि आफ्टर मेंसेस कराना चाहिए प्रोलैक्टिन, लेकिन उससे पहले बढ़ावा आ जाता है. अगर डे 2 कराते तो बढ़ावा आता है, मोस्टली ये सुना है मैंने. नहीं मैम, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड यानी जो एंडोक्राइनोलॉजी की स्पिरॉफ है, जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल बुक्स है, दे ऑल मेंशनिंग all these 4 hormones level should be done on day 2 or day 3. I will talk only of from the standard protocols, not by any mouth protocols. We only follow strict to the standard book protocols. I had learned my infertility from Spiroff, that is the universally accepted worldwide book. So I will talk only that is written in the standard book and what I am using in my practice. Okay, so ideally it is done on day 2 or day 3 empty stomach. मैम हाँ बोलिए प्लीज. मुझे पूछना था कि मैम फॉलिकुलर स्टडी मैम आपने बताया कि डे 2, 7, 9, 11 पे करा सकते हैं. मैम पेशेंट क्या ये प्रेफर करेगा कि मैम इतने दिन मतलब इतने अल्ट्रासाउंड पेल्विस को कराए? तो मैम उसके लिए मैम आइडली मैम कौन कौन से डे पे कराना चाहिए मैम? जैसे मिनिमम अगर 2 कराने हो क्या? हाँ, अगर आपको ऐसा है आइडियली तो इतना कराना ही चाहिए, तो ही आपको सीरियल पर कई पेशेंट फंसी होते हैं, उनको नहीं करानी होती है, तो हम लोग यूजुअली ऐसा मान के फिर चलने का कि डे 2 स्कैन उसका नॉर्मल है, तो उसको हम सीधा डे 9 पे देखेंगे, डे 9 और डे 10 पे, और फिर सीधा डे 12 या डे 13 पे देखेंगे. हेलो. ओके मैम. हाँ, बिकॉज डे 2 पे क्यों कराने का कोई नहीं करता है, कोई नहीं, यानी आप ओव्यूलेशन स्टडी के लिए भेजोगे ना तो कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं करेगा, मुझे पता है. बिकॉज क्या होता है ना, पेशेंट इज इन मेंसेस, तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता है और डॉक्टर भी नहीं करता है. बट आइडियली डे 2 डे 3 क्यों कराना चाहिए
कि अगर बेजल स्कैन में फॉलिकुलर सिस्ट है पीछे की साइकिल की तो आपको पता चलेगी। अगर क्या होता है ना, कई बार के सीधा डे 10 पे पेशेंट कराने जाता है और पीछे की साइकिल की फॉलिकुलर सिस्ट पड़ी हुई होती है तो उसको नहीं पता चलता है कि ये फ्रेश फॉलिकल है या पिछले साइकिल की पड़ी हुई फॉलिकल है। सो दैट्स वाई आई रेकमेंड टू डू ऑन डे 2 और डे 3। तो अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो किसी रेडियोलॉजिस्ट के साथ बात करके आप देख सकते हो कि हम डे 2 डे 3 पे कराए तो आप करके दोगे। आइडियली इट शुड बी डन, बट पेशेंट और डॉक्टर दोनों कंफर्टेबल नहीं होते हैं करने के लिए, दैट्स वाई आर नो बडी इज डूइंग। बट सपोज आई एम द फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट एंड आई हैड माई अल्ट्रासाउंड मशीन, सो आई एम डूइंग रेगुलर डे 2 डे 3 पे तो स्कैन करके ही मैं किसी को मेडिसिन लिखूंगी। बिकॉज क्या होगा कि डे 2 डे 3 पे अगर उसका फॉलिकल बड़ा हुआ है, पिछली साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर नहीं हुआ है और आप क्लोमिफिन या लेट्रोजोल देते हो तो वो तो फोगट में देते हो और कम समटाइम्स वो सिस्ट उससे बड़ी हो जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार पेशेंट विदाउट अल्ट्रासाउंड ओव्यूलेशन ड्रग लेता है तो। सो दैट्स वाई आई प्रिफर टू डू ऑन डे 2, then I will call the patient on I am talking about in my clinic, I will do on day 2 day 8 and then सीधा मैं फिर day 12 पे बुलाती हूँ। मैं 3 स्कैन करती हूँ मेरे क्लिनिक पे, day 2 day 8 एंड day 12। हाँ हाँ मैम, कभी कभी क्या होता है छोटा छोटा भी सिस्ट रहता है जो कि फॉलिकल टाइप का दिखता है, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे मैडम? हाँ देखिए, अभी मोस्ट सिस्ट है या follicle? या आप जो बोलते हो ना सर, अमूल्य सर, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड मोस्टली पीसीओडी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो होता है ना, तो उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट है ना वो क्या लिखते हैं पता है, कि वो लोग लिखेंगे मल्टीपल स्मॉल सिस्ट सीन इन द ओवरी। तो एक्चुअली वो सिस्ट नहीं होते हैं, दे आर फॉलिकल्स दैट नॉट ग्रोइंग फर्दर, so they consider it as a multiple follicular cyst। एक्चुअली में वो इनएक्टिव फॉलिकल्स होते हैं, सो दे तो कंसिडर। मैडम उसका साइज आगे बढ़ नहीं पाता, जैसे डे 2 में है डे 10 में भी वही रहेगा। तो दैट इज पीसीओएस। पीसीओएस है वो अभी मैं लेती हूँ। एन ओव्यूलेशन आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसे रहता है। पहले मैं वो खत्म करूँ फिर हम ये डिस्कस करते हैं आपके वाला क्वेश्चन। ओके मैडम। है ना, देखिए अभी यही आया जो आप सबको जो प्रॉब्लम है, ये है, ये देखिए एन ओव्यूलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO साइंटिफिक ग्रुप, एन ओव्यूलेशन है उसके 4 टाइप है। WHO ने 4 टाइप दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, ये पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी सब क्वेश्चंस और क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आज मीटिंग है ना थोड़ी 5 मिनट पहले किया था शुरू, तो मे बी अभी वो 10 मिनट के बाद डिसकंटिन्यू हो जाए तो आप लोग सब फिर ज्वाइन कर लेना, मैं भूल जाऊँ तो, इसलिए मैं अभी बोल देती हूँ। ठीक है, हाँ। तो एन ओव्यूलेशन के 4 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, अभी टाइप 1 को बोलते हैं हाइपो। व्हाट इज दैट? हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोइस्ट्रोजेनिज्म। व्हाट इज दैट? तो जो टाइप 1 है ना उसमें आप डे 2, हमेशा आप डे 2H का ध्यान रखिए। आई विल फॉलो ओनली डे 2 या 3 चलता है, अप टू 5 डेज तक भी चलता है, पर उसके बियॉन्ड के या रिपोर्ट्स हम लोग वैलिड नहीं गिनते हैं। तो अगर आप डे 2 डे 3 का हार्मोनल एनालिसिस कराते हो और आपका FSH LH डाउन मिलता है, डाउन यानी लेस देन 1.2, so they comes under the category of WHO type 1 एन ओव्यूलेशन, और उसको बोलते हैं हाइपो। अगर आपका FSH LH लेस देन 1.2 है पेशेंट का, तो क्या होगा कि उसका जो इनर्ट FSH LH है वही कम है।
तो ऐसे केस में अगर आप क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, कोई भी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग देते हो तो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आप अगर अल्ट्रासाउंड कराते हो तो वो लोग क्या लिखेंगे, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स सीन इन ओवरी। डे 2 पे भी ऐसा ही मिलेगा और डे 7 पे ऐसा मिलेगा और डे 10 पे भी ऐसा ही मिलेगा आपको, बिकॉज उसका जो इनर FSH-LH होना चाहिए वही नहीं है। तो GnRH जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो FSH-LH को एक्टिवेट करता है, FSH आएगा तो ओवरी में से एस्ट्रोजन आएगा और फॉलिकल ग्रो करेगा। पर उसका FSH-LH जो आइडियल बेसल होना चाहिए उससे भी कम है। तो आप कितनी भी मेडिसिन दोगे वो फॉलिकल बढ़ेगा नहीं। सो रेडियोलॉजिस्ट विल राइट एज ए सिस्ट, मल्टीपल स्मॉल सिस्ट सीन इन द ओवरी, वो ऐसा लिख के दे देते हैं। डे 2 पे ऐसा, डे 7 पे भी ऐसा, डे 8 पे भी ऐसा, डे 15 पे भी यही रिपोर्ट आएगा। सो उसको बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोइस्ट्रोजेनिज्म स्टेट। तो यहां पे हम क्या दे सकते हैं, यहां पे अंदर का जो FSH नहीं बनता है तो हमें बाहर से FSH-LH देना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शंस, उसको बोलते हैं FSH एंड HMG इंजेक्शंस आते हैं। वो मैं पूरा मेडिसिन पार्ट में लूंगी, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी मेडिसिन क्या डाउन है तो उसमें कोई ड्रग काम नहीं करेगी। यू हैव टू गिव इंजेक्शन FSH एंड HMG, दैट इज कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शंस। क्लियर? टाइप 1 समझ में आया सबको? मैम नहीं आया मैम। टाइप 1, मैम हाँ बोलिए बोलिए। मैम आपने बताया FSH और LH कम, लेकिन यहाँ एस्ट्रोजन और FSH कम दिखा रहे हैं। इस्ट्रोजन तो कम ही है, FSH एंड LH कम है और इस्ट्रोजन कम है। मैं इस्ट्रोजन क्यों नहीं बोल रही हूँ साथ में, बिकॉज हम जनरली इस्ट्रोजन लेवल नहीं कराते हैं सबका। अगर मुझे IVF करना है तो मैं कराऊंगी, बट रूटीनली हम नहीं कराते हैं। पर यहाँ पे ये जो है वो तो बुक का एक रिपोर्ट है, पर आइडियली FSH-LH लेस देन 1.2 होगा उसका, सिंपल। इस्ट्रोजन आप जाने दो, सिर्फ FSH-LH पे ध्यान रखो, उसका FSH एंड LH शुड बी लेस देन 1.2, दैट इज कॉल्ड हाइपोगोनाडोट्रोफिक स्टेट। और अगर इसका FSH बेसल LH FSH-LH लेस देन 1.2 होगा तो कोई मेडिसिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, आपको बाहर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। अभी आता है टाइप 2, वो सब आपके सबके लिए इंपॉर्टेंस है। अगर टाइप 1 तो इतना आप ट्रीट नहीं करोगे, पर टाइप 2 इज मोस्ट कॉमन। व्हाट इज दैट? PCOS। इसमें जो भी लिखा है, पर मैं बोलूँ वो समझो आप। टाइप 2 इज PCOS, बिकॉज ये तो बुक का रिपोर्ट है। आपको लिखना है साथ में तो आप लिख लीजिए, एक बुक पेन रखिए, मैं बोलती हूँ। टाइप 1 यानी जिसमें FSH-LH कम होते हैं, लेस देन 1.2 होता है, और उसमें आपको ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोफिन्स देना पड़ता है। क्लियर? टाइप 1 का लिख दिया, सबने लिखना हो तो लिख लीजिए। यस मैम लिख। टाइप 2 इज PCOS। व्हाट इज PCOS? यहां पे सब ऐसा लिखा है, पर इन टाइप 2 इट इज PCOS। तो नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है, एवरीथिंग नॉर्मल, FSH नॉर्मल, इस्ट्रोजन नॉर्मल। इस्ट्रोजन लिखा है पर आपको सबको पता है हम इस्ट्रोजन तो कराते ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका बढ़ा है कि कम है? तो FSH नॉर्मल है पर LH उसका हाई है। नॉर्मल FSH एंड LH हाई, हाई यानी डबल देन FSH। ये आप लिख लीजिए सब लोग।
LH FSH से डबल होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो हियर LH FSH रेशियो वुड बी ऑल्टर्ड. जनरली क्या होता है, FSH LH ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सेम यानी 1-2 पॉइंट का फर्क चलता है कि FSH 4 है तो LH 5 है, FSH 3 है तो LH 6 है, 5-6 है. पर when there is a LH is high double than the FSH, it is termed as the PCOS. Means it is hyperandrogenic condition. आप लोगों को याद हो तो मैंने जब फिजियोलॉजी पढ़ाई थी मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स की, तो उसमें मैंने बोला था कि FSH इज फीमेल हार्मोन एंड LH इज मेल हार्मोन. तो वो फॉलिकल को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, पर उसका रोल कब आएगा, डे 6 डे 7 पे. पर अगर वो डे 2 पे ही बढ़ा हुआ है तो वो फॉलिकल्स को कभी बढ़ने देगा नहीं. तो FSH नॉर्मल होगा और LH उससे डबल या उससे 3 गुना 4 गुना बढ़ा होगा, उसको बोलते हैं PCOD. और 80% आप केसेस जो भी प्रैक्टिस में देखते हो वो PCOS होते हैं. उसमें आपको फाइंडिंग कैसा मिलेगा, डे 2 पे वो लोग लिखेंगे मल्टीपल स्मॉल सिस्ट या मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स. डे 7 पे लिखेंगे थोड़ा बड़ा 7 mm का फॉलिकल सपोज. डे 10 पे लिखेंगे 8 mm, डे 12 पे लिखेंगे 12 mm, डे 15 पे लिखेंगे 15 mm. सो ऑलमोस्ट ये तो इतना बढ़ा, पर कई में तो 10 mm से ज़्यादा ही नहीं बढ़ेगा. फॉलिकल ही नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, LH सर्ज नहीं होगा. LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा. ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसकी साइकिल रेगुलर नहीं होगी. सो मोस्ट ऑफ द साइकिल्स आर इरेगुलर इन PCOS. हाँ ऊपर है. समझ में आया, PCOS का फंडा समझ में आता है. FSH विद इन नॉर्मल रेंज एंड LH इज हायर, डबल और ट्रिपल हायर देन FSH, उसको बोलते हैं PCOS. देन टाइप 3 समझ में आया. टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर अमूल्य सर, आपको पता चला रीजन, व्हाट इज रीजन आपने बोला क्या? ठीक मैडम. फिर टाइप 3 इज हाइपर हाइपो. हाइपर याद रखिए. ठीक है ना. तो क्या हुआ, फर्स्ट इज हाइपो, टाइप 2 इज नॉर्मो. नॉर्मो मीन्स FSH नॉर्मल है. टाइप 3 इज हाइपर, तो उसमें FSH LH दोनों बहुत हाई होंगे. हाई यानी कितने हाई, मोर देन 8. मेनोपॉज किसे कहते हैं, कैन एनीवन टेल मेनोपॉज किसे कहते हैं, प्लीज बोलिए.
मेनोपॉज में ऑस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है क्या 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 कम और होता है? हाँ, कम होता है। फिर क्या होता है? मेनोपोज में ईस्ट्रोजन कम होता है, पर साथ में FSH LH FSH बढ़ जाता बढ़ता है। है। कितना बढ़ता है? आप मेनोपोज किसे बोलेंगे? कितना लेवल होगा तो आप मेनोपोज बोलोगे? 15 के अबव मैम नो, FSH मोर देन 20 is premenopausal state and more than 40 is confirmed menopausal state. ओके मैम ओके, सो उसमें FSH LH बढ़ता है, सो दैट इज कॉल्ड हाइपरगोनेडोट्रॉफिक स्टेट। उसमें हाइपरगोनेड मीन्स FSH LH, तो अगर वो बढ़ जाता है तो हाइपो, ऑल्टर्ड होता है तो नॉर्मो में हम गिनते हैं। टाइप 3 में वो हाइपर यानी FSH LH बढ़ जाता है दोनों। एंड टाइप 4 इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। व्हाट इज नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल? व्हाट इज नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल? मैम Less लेस than देन 25। less than 25. या लेस देन 25। तो वेन एवर देर इज अ मोर देन 25, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। क्लियर? सो ऐसे 4 एनोव्युलेटरी स्टेजेस है। टाइप 1 इज हाइपो वेर FSH LH आर लो। टाइप 2 इज PCOD, ऐसे ही याद रखो। टाइप 2 इज PCOD। व्हाट इज PCOD? वेर FSH इज नॉर्मल and LH is double than FSH or more than that. In short, LH FSH ratio is altered, is termed as PCOS. Type 3 is hyper where FSH LH more than 8 and type 4 is hyperprolactinemia. Clear everyone? मैम हाँ बोलिए। मैम जो ये आपने स्लाइड शेयर किया है उसमें मैम एस्ट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैम थर्ड में, टाइप थर्ड में मैम वैसे ये जो हार्मोन का कंट्रोल होता है निगेटिव फीडबैक से होता है, तो मैम थर्ड में तो समझ में आ रहा है कि FSH बढ़ेगा इसलिए एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। नहीं, देखिए अभी जो थर्ड है ना, तो थर्ड क्या है कि दैट इज हाइपरगोनेडोट्रॉफिक स्टेज, तो उसमें FSH बहुत बढ़ा। ठीक है, अभी ओवरी ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होगा? मैम थीका सेल या ओवरी, ओवरी सिंपल। पहले तो वो कीजिए ना, ओवरी में से होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेनोपोजल एज आता है तो ऐसे क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेनोपोजल एज ग्रुप, तो ओवरी में, ओवरी का जो थीका सेल होता है वो सबका ब्लड सप्लाई चला जाता है, तो वो ईस्ट्रोजन ही सिक्रेट नहीं करेगा। सो उसमें ईस्ट्रोजन विल बी एट अ लोअर साइड, सिंपल। सो इट इज अ मेनोपोज इज हाइपोईस्ट्रोजेनिक कंडीशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज वी विल टॉक हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी फेलियर। अब नाउ वी विल टॉक वन बाय वन। What is type 1? Where FSH LH are low. So patient, how they present to you? How they present to you? Because उसका gonadotrophin नहीं है, तो they will present as either amenorrhea or severe oligomenoria. तो उसका अगर आप डे टू एच कराते हो तो पता चलता है कि इसका FSH LH लो है। तो ऐसे में आप कोई भी मेडिसिन दोगे, क्लोमिफिन, लेट्रोजोल, कुछ भी दोगे, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। सो क्या करोगे आप उसमें? हाँ, किस में देखने को मिलता है? इट इज सी, फर्स्ट तो इडियोपैथिक है, सेकंड पुअर माल न्यूट्रिशन जो लड़कियां होती है, BMI जिसका लेस देन 19 है, सीवियर स्ट्रेस फैक्टर और एथलीट्स, उसमें यू सी दिस काइंड ऑफ पेशेंट। सो इसमें आप क्लोमिफिन दोगे तो इट विल नॉट इफेक्टिव।
सो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? ओनली ट्रीटमेंट इज स्टिम्युलेशन हैज टू बी डन विथ एक्सोजीनस गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन, दैट इज इंजेक्शन FSH और इंजेक्शन HMG. नाउ वी कैसे विल, देते हैं मैम इसको? हाँ उसको बोलते इंजेक्शन हैं, कैसे हाँ देते हैं मैम? गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन. वो क्या है? डोज कैसे देते हैं मैम? क्या 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 डोज कैसे देते हैं मैम? डोज है ना, वो हम मेडिसिन में डिस्कस करेंगे. अभी बोलना हो तो मैं बोल देती हूँ, पर मुझे वो सब समझाना पड़ेगा कि FSH क्या है, HMG क्या है. वो पूरा मुझे आपको वो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि गोनेडो व्हाट इज गोनेडोट्रोफिन्स. ठीक है. तो अभी दूसरा हमने सीखा टाइप 2 इज PCOD. तो उसमें अगर एक क्राइटेरिया है बीच वाला, आप देखिए, उसको बोलते हैं रोटरड्रम क्राइटेरिया. ये सब लोग आप समझ लो अच्छी तरीके से. व्हाट इज रोटरड्रम क्राइटेरिया? आपको किसी को PCOS लेबल करना है तो आप किसको लेबल, कैसे लेबल करोगे? सिर्फ अकेला इसका LH हाई आया तो आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि इट इज PCOD. तो उन्होंने ऐसा 3 क्राइटेरिया दिया. एक क्राइटेरिया में बोलते हैं कि पेशेंट इज क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन. लंबे समय से आप सोनोग्राफी करते हो या कुछ भी करके देखते हो तो आपको पता है कि वो 6 महीने से उसको एन ओव्यूलेटरी साइकिल है, उसकी साइकिल रेगुलर नहीं आ रही है. चलो आपने देखा कि नहीं देखा, साइकिल इरेगुलर है. दूसरा, बायोकेमिकल चेंजेस मीन्स उसका LH हाई है FSH से, LH FSH रेशियो अल्टर्ड है. और तीसरा, अल्ट्रासाउंड में PCOS पैटर्न, उसको बोलते हैं नेकलेस अपीयरेंस. अभी वो पीछे मैं उसके सोनोग्राफी दिखाती हूँ आपको. अगर इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो दैट पेशेंट इज कंसिडर्ड एज ए PCOS. ये बहुत सारे हैं पर हम याद यही रखेंगे, इसको बोलते हैं रोटरड्रम क्राइटेरिया. 3 क्राइटेरिया, क्रोनिक एनोव्युलेटरी साइकिल, altered FSH LH ratio, and third is ultrasound confirmation of PCOS. इसमें से 2 फैक्टर प्रेजेंट है, then that patient is termed as the PCOS. See, this is the picture of PCOS. These are small multiple follicles, or you can call them a cyst. This is ovary. And these are follicles of less than 8 mm. पर ये फॉलिकल पूरा महीना ऐसा ही रहेंगे, इसमें से कुछ एक्टिवेट होगा ही नहीं. सो दे विल राइट एज ए मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट और मल्टीपल टाइनी फॉलिकल्स सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ऐसा आपको लिख के देंगे. और इसको बोलते हैं नेकलेस अपीयरेंस. आया समझ में? एक क्राइटेरिया ऐसा है कि एक फॉलिकल होता है. देखिए, सी दिस इज द क्राइटेरिया. मोर देन 12 follicles 2 to 9 mm in diameter are termed as PCOS. जनरली एक ओवरी में 8 to 10 एंट्रल फॉलिकल होते हैं. नॉर्मली यंग पेशेंट जो होता है तो उसमें 8 to 10 फॉलिकल्स नॉर्मली एक ओवरी में होते हैं. बट एक ओवरी में 12 से ज़्यादा फॉलिकल छोटे छोटे हैं तो दे टर्म्ड एज द PCOS. और इतने सारे फॉलिकल्स हो गए और उसका एंड्रोजेनिज्म LH लेवल की वजह से उसका स्ट्रोमा जो बीच का पोर्शन है वो भी थिकन्ड होगा. ये पोर्शन, ये इसको बोलते हैं थिकन्ड स्ट्रोमा ड्यू टू हाई LH. तो ड्यू टू थिकन्ड स्ट्रोमा उसका ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ेगा. सो नॉर्मल ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 सेंटीमीटर. तो ओवरी का वॉल्यूम बढ़ेगा और फॉलिकल्स का नंबर ज़्यादा हो गए
then also they termed as the PCOS. पता चला कैसे आप PCOS डायग्नोस करोगे? दो मेथड, एक आप सिंपल अल्ट्रासाउंड करा के देखते हो और दूसरा डे टू एच कराओगे तो आपको सब पता चल जाएगा. दिस इज द प्रॉब्लम. Everybody understood what is the pathomechanism of PCOD? Yeah, madam. Okay. Now this is a short management protocols of PCOS. अगर पेशेंट को PCOS डिटेक्ट होता है, मैं सब बाद में तो लेने वाली हूँ पर अभी सिर्फ सिंपल डिस्कस कर लेते हैं. तो PCOS में मैंने बोला कि LH बढ़ जाता है. व्हाट इज LH? एंड्रोजन, मेल हार्मोन. सो इट इज कॉल्ड हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन. हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन. तो अगर उसको LH को डाउन करना है तो सबसे पहले आएगा वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर पेशेंट 5% भी 10% भी वेट रिडक्शन करता है तो उसकी एनओव्यूलेटरी साइकिल में कन्वर्ट इनटू ओव्यूलेटरी साइकिल. सो फर्स्ट स्टेप इज वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. उससे नहीं होता है तो वी विल ऐड ओव्यूलेशन इंडक्टरी ड्रग्स, क्लोमिफिन और लेट्रोजोल. दैट वी विल डिस्कस इन द मेडिसिन पार्ट. अलोंग विथ एक दो मेडिसिन साथ में आती है दैट वी यूजुअली प्रिस्क्राइब. दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. तो वो कौन सी है? मेटफॉर्मिन एंड बायोआयनोसिटॉल. मेटफॉर्मिन एंड बायोआयनोसिटॉल. सो आइडियल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ PCOD इज डू द ओव्यूलेशन इंडक्शन विथ क्लोमिफिन और लेट्रोजोल along with metformin and bioinositol for 3 to 4 months. अगर इससे भी रिजल्ट नहीं मिलता है then you have to go for laparoscopic ovarian drilling. What is that? ओवरी होता है, उसमें जो लेप्रोस्कोप से ऐसे छेद कर देते हैं. सो उसकी वजह से जो एंड्रोजेनिक फ्लूइड है वो निकलेगा तो ओवेरियन का साइज कम होगा और फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे. उसको बोलते हैं LOD. दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग. उससे भी नहीं होता है देन हैव टू गो फॉर ART टेक्निक. दैट इज IUI एंड IVF. सी दिस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग. Then third is hypergonadotrophic. In that we had discussed FSH and LH both are high, more than 20. तो हम ये तो समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज ये रिपोर्ट मिलेगा, पर कई बार इवन इन 25 साल की लड़की में भी यू सी दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट. उसका FSH 40 आएगा, 20 आएगा, 35 आएगा. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर. जहां पे इन वेरी यंग एज ग्रुप लेस देन 40 ईयर में अगर आपको FSH LH इतना हाई मिलता है तो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज प्राइमरी ओवेरियन फेलियर. ओवरी कुछ भी कैपेबल ही नहीं है फॉलिकल प्रोड्यूसन के लिए, वो पूरी फेल हो चुकी है. और ऐसे केस में डॉक्टर और पेशेंट कुछ नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज सीन विथ इडियोपैथिक जेनेटिक रीजन पता नहीं है, और कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से भी ओवेरियन फेलियर हो सकता है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर. कैन यू सी द ओवरी? दिस इज ओवरी बट नो फॉलिकल सीन इनसाइड द ओवरी. So this is called primary ovarian failure. उसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे?
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओनली ट्रीटमेंट इज IVF विथ ओवम डोनेशन। टेस्ट ट्यूब करके ओवम डोनेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? उसका एग नहीं बनता है, ठीक है। अभी इसमें तो आप उस ओवरी में फॉलिकल ही नहीं है, तो आप कैसे कहाँ से लाओगे? जो टाइप 1 था उसमें क्या था कि FSH कम है पर ओवरी में फॉलिकल तो है थोड़े, तो अगर आप बाहर से FSH दोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। टाइप 2 में क्या करेंगे आप? मेडिसिन देके LH डाउन करेंगे। तो मेटफॉर्मिन दोगे तो डाउन हो सकता है, मायोइनोसिटोल करके डाउन हो सकता है, वेट रिडक्शन करके LH नॉर्मल ला सकते हो। पर यहाँ पे जब FSH LH बढ़ा है तो क्या आप करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसमें आपको ओवम डोनेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? एक कोई जैसे ब्लड डोनर होता है ऐसे एक डोनर रहता है हमारे सेंटर पे। तो कोई दूसरी लेडीज में आप अंडे बनाओगे, उसको ग्रो करोगे और अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी की मदद और एनेस्थेसिया से वो अंडे उसके वो डोनर में से निकालेंगे। इस पेशेंट के हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, उसको लैब में फर्टिलाइज करेंगे और जो एम्ब्रियो बनेगा उसको इस पेशेंट में रख देंगे। उसको बोलते हैं IVF प्लस ओवम डोनेशन। सो इसमें दिस इज द ट्रीटमेंट दैट वी कैन डू। सो ये आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अगर किसी पेशेंट का FSH मोर देन 20 है या इवन मोर देन 10 है तो उसको छोड़ दो। उसमें आप कुछ भी करोगे कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। आता है समझ में? हेलो, आता है समझ में? हाँ, यस मैम। ओके ओके। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। OC पिल्स देते हो तो वो FSH LH को डाउन करता है, पर फॉलिकल्स तो बनने वाले ही नहीं है। तो उसमें हम ओवरऑल देके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देके FSH LH डाउन करेंगे और फिर उसका IVF प्लस ओवम डोनेशन करेंगे। तो इसमें उसके सिवाय कोई रास्ता रहता नहीं है। टाइप 4 इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। हाँ, इसमें एक बात बताना भूल गई कि ये मैंने बताया वो यंग एज ग्रुप का, पर कई बार 40 इयर्स की लेडीज आती है कि जो माइनर चेंजेस पे होती है, जिसका FSH 10-12 पे होता है, बॉर्डर पे होता है, तो वो तो एज की वजह से है। तो ऐसे केसेस में अप टू 40 ईयर मीन्स 35 से 40 साल के बीच में जिनका वो फेल्योर की तरफ जा रही है बट जिसमें फॉलिकल्स है, तो उसमें हम एक मेडिसिन देते हैं डाइहाइड्रोएपीएंड्रास्टिनाडियोन। डाइहाइड्रोएपीएंड्रास्टिनाडियोन 75 milligram once in the morning with cup of milk for 4 months। तो कई बार बॉर्डर लाइन फेलियर होता है, उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है, बट एज शुड बी लेस देन 40 और उसका पहले 1-2 बच्चा हो चुका होता है या it is only due to age factor, then and then this medicine will going to the work। उसको बोलते हैं DHEA डाइहाइड्रोएपीएंड्रास्टिनाडियोन 75 milligram once in a morning। क्लियर? Then type 4 is hyperprolactinemia, more than 25 nanogram per dl, it is called hyperprolactinemia। अगर hyperprolactinemia है, can leads to anovulatory cycle, inadequate progesterone,
सो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रुकेगी. सो दिस ऑल कुड बी द फैक्टर. उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखी नहीं है, पीछे आएगी शायद, पर मैं बोल देती हूँ. अगर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया है तो वी गिव कैबगोलिन टैबलेट. कैबगोलिन दिखता है सबको? कैबगोलिन 0.5 मिलीग्राम टैबलेट, 0.5 मिलीग्राम टैबलेट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार फॉर 2 मंथ्स. कैबगोलिन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 2 मंथ्स. कब दोगे? व्हेन प्रोलैक्टिन मोर देन 25. हाँ बोलिए. मैम एक बार रिपीट करिए. हाँ, कैबगोलिन CABGOLINE कैबगोलिन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार. यानी कैसे आप दोगे? मंडे थर्सडे या ट्यूसडे फ्राइडे, जो भी आपको, हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक फॉर 2 मंथ्स. ठीक है. और ये दवाई से सिर्फ पेशेंट को, जब आप ये दवाई लिखो तो आपको बोलना पड़ेगा कि इससे सुबह में उठोगे तब थोड़ा हेडेक और डिजीनेस रहेगा. बिकॉज अगर आप नहीं बोलोगे तो पेशेंट को लगेगा ये दवाई का आड़ असर हुआ, तो इससे ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा अपने आपको बोल देना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? ये मेडिसिन में मैं लूंगी पूरा, पर तो भी मैं बता देती हूँ. 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 2 months. So this is completes all our ovulatory factor. Tomorrow we will start the tubal factor. ठीक है? ओके, तो अभी किसी को क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए. आज मैं थोड़ी फ्री हूँ तो आई कैन गिव द आंसर. मैम जो 4 टाइप बताया मैम, उसमें एस्ट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है मैम एक बार बता दो. अच्छा, कोई बात नहीं. देखिए 4 टाइप है ना. पहले तो ईस्ट्रोजन जाने दो, पहले आप FSH-LH क्लियर करो, फिलहाल मैं आपको ईस्ट्रोजन सिखाती हूँ. टाइप 1 में आप इतना याद रखो, हाइपो आप लिख दीजिए, फिर हम ईस्ट्रोजन का मैं बोलती हूँ. टाइप 1 इज हाइपो, उसमें FSH-LH लो होगा, इतना याद रखो. ठीक है. ओके. फिर टाइप 2 है ना, उसमें FSH नॉर्मल एंड LH हाई होगा. ओके मैम. टाइप 3 है, उसमें हाँ क्या बोलिए, कोई किसी ने कुछ बोला. LH कितना बताया आपने? हाई यानी मोर देन 8 होगा. फिर टाइप 3 में क्या होगा? FSH LH दोनों हाई होंगे. कितने हाई होंगे? मोर देन 8. पर दोनों, टाइप 2 में सिर्फ LH हाई होगा, FSH नॉर्मल होगा. टाइप 3 में FSH LH दोनों हाई होंगे. और टाइप 4 में प्रोलैक्टिन हाई होगा. इतना समझ में आया? पहले FSH इतना पहला आना चाहिए. यस मैम. ठीक है. अभी ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन कितना हाई होगा? प्रोलैक्टिन मोर देन 25. मोर देन 25 नैनोग्राम पर DL. हुआ क्लियर? इतना हुआ ना. अभी देखिए, एक जो पूरी ये फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, जो हार्मोन्स, वो पूरी HPO एक्सिस पे बनी हुई है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है. तो उसमें क्या होता है कि FSH एंड ईस्ट्रोजन, FSH LH एंड ईस्ट्रोजन, वो सब वाइजा वर्जा काम करते हैं. तो जो पहला है, इट इज कॉल्ड हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोईस्ट्रोजेनिक कंडीशन. तो उसमें वो लोग ऐसा बोलते हैं कि FSH LH जो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में से सिक्रीट हो रहे हैं, वो कम है. ठीक है, वो कम है, तो उसकी वजह से वही सिक्रीट हो नहीं रहे हैं, तो वो ओवरी को एक्टिवेट कर नहीं रहे हैं. तो ओवरी में से भी ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो नहीं रहा है.
So sub all are in low value. FSH, LH and estrogen all are in at a lower side. So first में क्या हुआ? FSH लो, LH लो, estrogen लो. Clear? यस मैम। टाइप 2 में क्या होगा? FSH लो, FSH नॉर्मल, LH हाई एंड ईस्ट्रोजन थोड़ा हाई होगा बिकॉज PCOS इज अ हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, एन ओव्यूलेशन की वजह से ओवरी में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती रहती है पर वो उसका साइकिल मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट इज इन हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन। टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 इज अ टोटल फेलियर ही है, आप समझ लो। टाइप 3 इज ओवेरियन फेलियर, उसमें ओवरी है ही नहीं, वो समझ लो। ओवरी नहीं है तो कोई फीडबैक मैकेनिज्म होगी ही नहीं। FSH LH बहुत हाई होगा और ओवरी तो है ही नहीं, तो ओवरी है नहीं तो एस्ट्रोजन कहां से आएगा? तो एस्ट्रोजन इज ऑल्सो ऑन अ लोअर साइड। एंड टाइप 4 इज हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया। क्या क्या? टाइप 3 में है ना मैम एस्ट्रोजन? टाइप 3 में FSH LH हाई एंड एस्ट्रोजन लो। आया समझ में? यस मैम। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम कल से ट्यूबल फैक्टर जाएंगे। हाँ, मुझे एक बात बोलनी है कि मैंने जब से स्टार्ट किया ना, हाँ जी। वहाँ से मैंने पूरे लेक्चर्स के स्लाइड्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रख दिए हैं। तो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है या किसी को फिर से समझना है तो आपको जब भी टाइम मिले एक बार लाइन में सब सुन लीजिएगा, तो आपको लिए बेटर रहेगा कि अच्छा रहेगा। तो मैंने पहले भेजा था पर बहुत अलग अलग भेजा था, तो मैंने पूरे लाइन में एक लेक्चर्स रख दिए हैं ग्रुप में, जो 1/7/2020 इनफर्टिलिटी वाला ग्रुप है उसमें। तो उसमें आप जाओगे तो सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स रखे हैं, तो वो आप जाके एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छा रहेगा। और उसमें कभी भी डाउट हो तो लेक्चर में पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा, तो विल डिस्कस इन लेक्चर। ठीक है? मैम हाँ बोलिए। मैम जो पेशेंट की आपका हाइपोप्लास्टिक यूट्रस बोलेंगे ना, उसको जो 5.2 आ रहा था 5.6 into 3 into 3 ये क्या? रिपोर्ट सेंड की थी मैंने आपको मैम। हाँ 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 हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है ना? या हाँ एक सेकंड ना, एक सेकंड। मैम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेगा ये पेशेंट? हाँ एक सेकंड आपका है ये रिपोर्ट। हाँ, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की आप बात कर रहे थे ना, तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में अगर इतना इसको मैं बहुत छोटा नहीं मानती हूँ, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कंसीव होने में। तो ओनली प्रॉब्लम इज फॉलिकल लेवल। उसका हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के साथ में ओवरी कैसी है, तो अगर इतना हाइपोप्लास्टिक है बट ओवरी इज इन गुड वर्किंग कंडीशन, फॉलिकल्स अच्छे बनते हैं, ओव्यूलेशन होता है, तो ये पेशेंट पक्का कंफर्म करेगी। बट हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है तो आपको पहले उसका डे टू एच देखना पड़ेगा कि ओवरी कैसी है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना कि कई बार हाइपोप्लास्टिक यूट्रस ऐसे नॉर्मली होते हैं और पेशेंट कंसीव कर जाते हैं, बट प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है तो उसमें हाइपोप्लास्टिक यूट्रस बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो अगर उसके डे टू एच नॉर्मल है तो इस पेशेंट का आपको कुछ नहीं करना है, ओनली गिव आर्जिनिन, L-arginine सचेट्स दो, दैट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। L-arginine सचेट्स 3 ग्राम सचेट्स आता है L-arginine का, 3 ग्राम सचेट्स 1 BD फॉर 3 months। तो ओनली दैट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है,
but make sure her day to H level are all in normal limits. अगर मैम उसमें कर लेगी 9 मंथ तक क्या 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 9 मंथ तक कर पाएगी कह रही नहीं नहीं, ऐसे में प्रीटर्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वही प्रीटर्म चांसेस आर ज़्यादा, पर वो फिर दे वी कैन टेक केयर, और स्ट्राइटनिंग कर देंगे, फिर सब मेडिसिन दे के वी कैन, ऐसे मैंने मेरे दो तीन पेशेंट है कंसीव कराए हैं और प्रॉब्लम नहीं आता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 34 वीक पे हम लोग डिलीवर हो जाता है, पर दैट बेबी कैन सर्वाइव इन NICU. सो इतना हाइपोप्लास्टिक नहीं है ये यूट्रस, पर मेक श्योर डे टू H इज नॉर्मल. ओके मैम मैं डे टू एच करा लूंगी ओके मैम थैंक यू मैम ठीक है. अभी दूसरे किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज, हर रोज मुझे बहुत जल्दी होता है क्योंकि नेक्स्ट बैचेस होती है. आज मैं क्वाइट फ्री हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए. ठीक है, तो कल मिलते हैं 3:30. प्लीज बी ऑन टाइम. ओके मैम ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड डे.